7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 7.2 ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 7.1 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੁਜਾ ਭੁਜਾ ਭੁਜਾ, ਭੁਜਾ ਕੋਣ ਭੁਜਾ, RHS ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਮਕੋਣ, ਭੁਜਾ ਤੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੜਾ, ਸਾਡਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ AC DF ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਹ AC ਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਹ DF ਲਾਈਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੱਸਦੇ ਨਾ, ਆਹ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਪਾਈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਗਾਤੀ। AB DE ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਆਹ AB ਹੈ, ਆਹ DE ਹੈ। ਆਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। BC EF ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੀ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਜਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਭੁਜਾ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਭੁਜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ वाले बच्चे की लिखेंगे SSS रूल। सिंपल जो क्वेश्चन ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ ਕਿਸ ਮਾਪਦੰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਦੇਖੋ, B ਭਾਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ZX RP ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ZX RP ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। RQ ZY ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ PRQ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ XZY ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਭੁਜਾ, ਫਿਰ ਕੋਣ, ਫਿਰ ਭੁਜਾ, ਕੋਣ, ਭੁਜਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਭੁਜਾ ਕੋਣ ਭੁਜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਲਿਖਣਗੇ? ਸਾਈਡ ਐਂਗਲ ਸਾਈਡ ਰੂਲ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆंसर भी हो गया। इसी तरह तीजा भाग देखो, MLN मतलब आ वाला कौन? FGH के बराबर, ठीक है ना। NML, पहला N फिर M फिर L, मतलब आ वाला मैं दो लाइन देखो, दो पाइया ने। GFH इतने भी दो बनाते, ਇਹਦਾ मतलब सिंगल वाला सिंगल के बराबर, डबल वाला डबल के बराबर, तो ML भुजा FG ਦੇ ਬਰਾबर। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੋਣ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਭੁਜਾ ਆਈ, ਫਿਰ ਕੋਣ ਭੁਜਾ ਕੋਣ। ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਕੋਣ ਭੁਜਾ ਕੋਣ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ। ਐਂਗਲ ਸਾਈਡ ਐਂਗਲ ਰੂਲ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ ਕਿਸ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ 30 ਪਾਰਟ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਹ ਭੁਜਾ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ 90-90। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਮਕੋਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਕਰਨ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਭੁਜਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਕੋਣ, ਕਰਨ ਤੇ ਭੁਜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ RHS ਰੂਲ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਭਾਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ART ਤੇ PEN ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ SSS ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ AR ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। AR ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅੱਖਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅੱਖਰ ਚੱਕੋ PE, ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਨਸਰ। ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ। RT ਦੇਖੋ, R ਤੇ T ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਅੱਖਰ ਚੱਕੋ EN। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਨੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੋ। ਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋ, A ਤੇ T ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ PN।
तो खत्म भी हो गया क्वेश्चन बेटा। बहुत ही सौखा क्वेश्चन है, सिंपल। तुहानू त्रिभुज के नाम दिते गए ने, तुसी बस जिस पोजीशन ते आ वाले अखर ने उसी पोजीशन ते उधरों अखर चक लेने। तो इस तरह इसका दूजा भाग देखो, जेकर यही दिता गया होवे कि टी कोण ते एन कोण ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ SAS मापदंड का प्रयोग करना चाहो तो ਤੁਹਾਨੂੰ की जरूरत होएगी। हुण देखो टी कोण एन के बराबर है, ध्यान नाल समझना बेटा। हुण तुसीं सब तो पहले इन्हां डायग्राम्स नूं बना लो, तुहानूं होर सौखा हो जाएगा। ART त्रिभुज ते PEN त्रिभुज। हुण तुहानूं की कह रहा हो कि टी कोण एन के बराबर किया गया, टी कोण एन के बराबर किया गया, तो तुसी SAS मतलब इस कोण के नाल वाली भुजा तो इस कोण के नाल वाली आ भुजा, दोनों भुजावां ना, तो आ भुजा ये बराबर करनी है पड़ेगी, तो आ वाली भुजा ये बराबर करनी होएगी, है ना। इसका मतलब RT बराबर EN की लिखोगे, सानू की लोड़ है RT। कहना देखो RT के बराबर करना है, तो इधरों भी देख सकते हो R तो T के बराबर करांगे EN दे, सेम वही क्वेश्चन है बेटा। तो PN के बराबर करांगे, PN के बराबर करांगे असी AT दे, क्योंकि पहला तीजा अखर है, पहला तीजा चकांगे AT दे। तो सानू डायग्राम बिना बनाए भी असी आंसर पता कर लिया है, डायग्राम बना के भी पता कर लिया। तो डायग्राम बिना बनाए तुहानूं मैं दस दिता है कि जिहड़े दो त्रिभुज दिते गए सीगे उन्हां त्रिभुजां दे विच देखना है कि तुहाडे कोल RT दिता गया, देखो RT तुसीं देखना RT कित्थे है, दूजा तीजा अखर, तो EN तुहाडा आंसर हो गया। तो जे PN दिता गया है तो P ते N पहला तीजा है, तो पहला तीजा AT तुहाडा आंसर हो गया। इस तरह तुहाडा दूजे का दूजा भाग भी कंप्लीट हो गया है। हुण आपां अगे चलते हैं। सी भाग च कह रहा है कि जेकर ये दिता गया होवे कि AT PN के बराबर है, देखो AT तो PN के बराबर है, तो तुहानूं ASA मापदंड का प्रयोग करना है। एंगल साइड एंगल तुहानूं दस्सिया सी, एंगल साइड एंगल का मतलब होंदा है एंगल फिर साइड फिर एंगल, मतलब आ साइड आ गई तो आ वाला एंगल चाहिए जो कि ये बराबर होवे, तो आ वाला एंगल चाहिए जो कि ये बराबर होवे, ताइयों कोण भुजा कोण एंगल साइड एंगल बनेगा। इसका मतलब सानू किस चीज़ की लोड़ है, सानू एंगल A तो एंगल P ते बराबर होने दी, एंगल A तो एंगल P बराबर हो जाए किसी तरह का, तो एंगल T तो एंगल N बराबर हो जाए। आई गल समझ। उसने कहा जेकर ये दिता गया होवे कि AT ते PN बराबर हैं, तो ASA पूरा करने लई देखो तीन चीज़ां होंदियां ना, कोण भुजा कोण, भुजा तो देती सानू, हुण रह गए दो, एक कोण ते दूजा कोण। वो कोण किहड़े लेने ने, उस भुजा दे नाल लगदे होए, आ भुजा दे नाल लगदे होए कोण A ते T ने, ते ए कोण P दे बराबर, सामने सामने वाले कोण बराबर होंदे ना, ए कोण T दे बराबर ते P दे बराबर ते T कोण N दे बराबर। तो ये दो चीज़ां सानू होर चाहीदियां ने जो कि साडा आंसर होएगा इस क्वेश्चन का। हुण आपां तीजा क्वेश्चन करांगे, ध्यान नाल देखो। कहते तुसी AMP त्रिभुज देख रहे हो, तो AMQ दोनों नूं सरबंसम करना है। तो आ चीज़ां ये सारा क्वेश्चन है बेटा, देखो पहला भाग ये स्टैप्स दिते गए ने क्वेश्चन दे विच, कहंदा बस ये दसो कि बराबर किद्दां हो गए, रीजन की है, बस ये दसना। हुण सब तो पहला PM ते QM, देखो PM ते QM लाइन क्वेश्चन वाले ने बना के दित्ती है, मतलब दिता है सानू। इंग्लिश वाले बच्चे की लिखेंगे गिवन। PMA तो QMA की है, PMA तो QMA भी सानू दिता गया है गिवन। ये ऐसे आंसर लिख रहे हैं बेटा, उन्हें सानू रीजन पूछे कि ये बराबर क्यों आया, आ मेरा आंसर है, ठीक है। AM बराबर AM, देखो AM बराबर का मतलब होंगे जो एक ही भुजा दोनों की सांझी दीवार है ना, ये उस कमरे की उस कमरे की सांझी दीवार में बोलने सांझी भुजा। कॉमन साइड। तो हुण दसो कि सरबंसम किद्दां होए, देखो भुजा कोण ते फिर भुजा, भुजा कोण भुजा तो इंग्लिश वाले बच्चे की लिखेंगे साइड एंगल साइड रूल। तो इस तरह बेटा साडा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, जिहड़ा कि सानू उसने सिर्फ रीजन लिखन दी कही सन कि किस रीजन के तहत ये बराबर हुए ने। तो ये साडे आंसर्स ने, ध्यान नाल समझने ने। तीजा क्वेश्चन भी साडा कंप्लीट हो गया है। हुण चौथा क्वेश्चन करांगे।
चौथे क्वेश्चन च क्या जा रहा है कि एक त्रिभुज है ABC ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਣ A ਕੋਣ B ਕੋਣ C 30 40 ਤੇ 110 ਹੈ ਤੇ PQR ਵਿੱਚ ਵੀ PQ ਤੇ R ਵੀ ਸੇਮ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਣ A ਕੋਣ B ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਣ B ਤੇ ਕੋਣ Q ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਣ C ਕੋਣ R ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਣ ਸਰਬੰਗਸਮਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਬੰਗਸਮ ਹੋ ਗਏ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ इन ट्रायंगल ABC या कौन दिते गए ने PQR विच कौन दिते गए ने एक स्टूडेंट ने कहा कि बोथ ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल की इज जस्टिफाइड करो कि वो सही है गलत है मैं उसका आंसर पहले ही लिख चुका है ध्यान देखो नहीं क्योंकि दो त्रिभुजां विच एंगल सरबंग समता नहीं हुंदी तिन्ने कोणां नाल असीं सरबंग समता सिद्ध नहीं कर सकते सानू ਜਾਂ ਤਾਂ SSS ਤਿੰਨੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ SES ਭੁਜਾ ਕੋਣ ਭੁਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭੁਜਾ ਕੋਣ ਭੁਜਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਣ ਭੁਜਾ ਕੋਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਗਲ ਸਾਈਡ ਐਂਗਲ ਤੇ RHS ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਵੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂਗਲ ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਨੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਆਫ ਕੌਂਗਰੂਐਂਸੀ ਆਫ ਟੂ ट्रायंगल्स ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆंसर ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ पंजवां क्वेश्चन देखो पंजवें क्वेश्चन कहता है कि चित्र विचों दो त्रिभुज RAT ते OWN सरबंगसम दिते गए ने ये दोनों त्रिभुज सरबंगसम दिते हुए ने बेटा हुण इसके संगत भागां नूं अंकित किया गया तो तुसी त्रिभुज RAT नूं सरबंगसम किस त्रिभुज के बराबर लिखोगे असी इस डब्बे नूं भरना है बस साडा ये क्वेश्चन का आंसर है हुण देखो ध्यान नाल आर कोण किहदे बराबर है देखो सिंगल लाइन W के लागे लगी है तो R के सामने से W लिखांगे ए कोण किहदे बराबर है डबल लाइन O ते लगी है असी O लिखांगे T ट्रिपल लाइन N के सामने है N लिखांगे तो WON साडा इस क्वेश्चन का आंसर होएगा बेटा बहुत ही सिंपल वे ना तुहानूं दस्सिया तो बोलने की लोड़ ही नहीं होएगी तुहानूं सिंपल असी डायग्राम तो देख के लिख लिया है हुण असी अगला क्वेश्चन करांगे 6वां क्वेश्चन सरबंगसम के कथनां नूं पूरा करो डायग्राम तुहाडे सामने है बेटा तो असीं दसना है कि BCA किहदे सरबंगसम होएगा हुण ध्यान देखो सब तो पहला असीं देखते हैं कि सिंगल लाइन बराबर किहड़ी है देखो पहला लिख लीए असीं दिता की है TA ते AC बराबर है ना सिंगल लाइन दे बराबर डबल लाइन BT ते BC बराबर ने BT ते BC बराबर है ठीक है तो आ कोण ਤੇ ਆ ਕੋਣ बराबर है ਹੁਣ देखो ध्यान ਨਾਲ समझने की लोड़ की है TA AC ਦੇ बराबर है TA AC ਦੇ बराबर है ਤੇ BT BC ਦੇ बराबर है ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਅੱਖਰ मतलब ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ T ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀ ਹੈ C मतलब T ਲਈ C ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ मतलब C ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ T ਆएगा दूजे अखर ने की आएगा T आएगा C की प्लेसमेंट पे कौन आ गया T आ गया तो हम देखो B कोण बराबर है तो B की प्लेसमेंट ते B आएगा मतलब B हो गया T हो गया तो बचा कौन BCA आ त्रिभुज का सानू खब्बे हत्थ दिता गया ना हम B हो गया T हो गया तो बचा कौन A त्रिभुज BTA तो आंसर होएगा मतलब त्रिभुज BCA सरबंगसम किहदे होएगा त्रिभुज BTA दे ये तुहाडा आंसर है किस तरह पता लगा असी जिहड़ी चीज़ दित्ती हुंदी है ना उत्थों जे भुजावां दित्तियां होण तां असी देखदे हां दो भुजावां दे खब्बे हत्थ जिहड़ा साझा अखर है तो फिर सज्जे हत्थ जिहड़ा साझा अखर है साझा अखर के बराबर मतलब इधर साझा अखर T है इधर साझा अखर C है तो T की थां ते C लिखा जाएगा जां C की थां ते T लिखा जाएगा तो मैं C की थां ते T लिख लेगा फिर कोण B के बराबर है इस करके B के सामने B लिख लिया तो जोड़ा तीजा अखर बच गया वो तीजे खाने पर आ गया इस तरह हूँ इधर आ जाओ इधर देखो पहली लाइन PT है PT सिंगल लाइन के बराबर है QR दे ध्यान देखना है डबल लाइन है TQ तो डबल लाइन है इधर QS ट्रिपल लाइन है PQ तो इधर ट्रिपल लाइन है RS हुण तुसीं देखो किद्दां कराऊंगा मैं तुसी इन्हां दोनों दे विच साझा अखर लभो T है ना तो इन्हां च साझा अखर Q है मतलब T की थां ते Q लिख दिओ मतलब Q की थां ते T लिख दिओ गल इक्को ही है हुण इन्हां दोनों च साझा देखो की है S तो इन्हां दोनों च साझा Q तो Q की थां ते S आऊगा
ठीक है ना। फिर एस की थां ते कौन आएगा, क्यू आएगा। आ एस है, इधर क्यू आ गया। देखो हुण विचकारला अखर बच गया आर, अंडरस्टूड है। हुण तुसीं देखो क्यू आर एस तुहाडा जिहड़ा सीगा आ तुहाडा त्रिभुज हो चुका सीगा इस पासे। हुण इस त्रिभुज की वारी सीगी, इहदे विचों टी आ चुका है, क्यू आ चुका है, बचा कौन, पी। तो इस तरह त्रिभुज क्यू आर एस जो है किहदे सरबंगसम होया है, त्रिभुज टी पी क्यू दे। ये तुहाडे इस सवाल का आंसर आ गया है। तो उम्मीद करांगा कि तुहानूं समझ आया है किस तरह असीं त्रिभुजां दे नाम नूं लिखिया है। जेकर मेरी वीडियो वधिया लगी होवे तो जरूर उसनूं लाइक करियो, जरूर कमेंट करियो, तो मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुल्लियो।